ऑलराइट दोस्तों, स्वागत करता हूँ ऋषिकेश अनस्टॉपेबल के नए ब्लॉग में। आज मैं आया हूँ TV9 मराठी एजुकेशन एक्सपो में। ये जो है एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्रेंस है। अभी हम जा रहे हैं एक्सपो की तरफ। होटल है, वहाँ जा रहे हैं। Hello guys, we are in TV9 Educational Expo. So there is in Kalyani sir so guided to you what is institute do and what are the courses on that. Thank you. So my name is Nimai. I'm the campus director for University of Wollongong in India. It is an Australian university that has a branch in India offering a variety of courses. We have been in India for the last 2 years, and what we are doing is we are making Australian education far more reachable in terms of affordability, accessibility, in terms of meeting the aspirants' needs and expectations right here in India. So now you don't have to worry about the uncertainty of your visas, you don't have to worry about traveling to Australia, the added expense of studying in Australia, because the fees in India is at 50% of the fees in Australia. And on top of that 50% reduction in fees, we have a plethora of scholarships that are available. So we've just been in India for the last 2 years, where we started with the master's program. This year we are also bringing in our bachelor's program, which is Bachelor's of Business in Business Analytics and Finance. Next year we'll be bringing in more courses in computing, in artificial intelligence, in data analytics at the bachelor's level. At the master's level, we have Masters of FinTech, which is one of the most and fastest growing fields in the world right now, and India happens to be leading it. The other program that we have is Masters in Applied AI. Again, artificial intelligence and machine learning is the next big thing to happen, and everybody is catching up on that. The third big program that we have is Masters in Data Analytics. So if you think of it, data analytics as a subject is no longer sitting besides other subjects, but it is integrated into all the subjects. So whether you talk of business, whether you talk of engineering, whether you talk of medicine, analytics is embedded into all these fields. And so data analytics is our third big program. These are the three programs at the master's level. Very soon we'll be bringing in Masters of Cybersecurity as well. So when you look at these, slowly but steadily, every year our programs are growing. Our fees, again, as I said, are 50% of what you would have to pay in Australia. Cost of living is significantly lower in India as compared to Australia, and your opportunities remain the same. So if you would visit our website or you look at the brochure that we have, you will see that your job placements are within the GIFT ecosystem, pan-India, and opportunities overseas as well. So we have a global network of industry partners that can give you the opportunity for jobs, for internships, for industry projects, for placements. You name the thing and we have it. So do check out our website. Just look up for UOW India, and the first website is our website. Look forward to having you on our website and following us on our social media handles for more information. Okay, thank you sir. No problem.
Okay, Sachin sir, Hello. good morning. Good morning. And what are the courses you are providing? So the audience are excitement for that. So also the placement guarantee and also the fee structure on that. So let's explain on your institute regarding. ओके सो हेलो एवरीवन। हमारे कॉलेज का नाम राजाराम बापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो साकराले में है, तालुका वाळवा, डिस्ट्रिक्ट सांगली, जो कराड से 20 किलोमीटर्स अपार्ट है। तो हमारे कॉलेज जो है, हमारा कॉलेज 1983 में एस्टेब्लिश हुआ है। हमारा कॉलेज एम्पावर्ड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है विच इज़ एफिलिएटेड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, विच इज़ एफिलिएटेड टू शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। हमारे कॉलेज में टोटल यूजी के 9 कोर्सेज है जहाँ जिससे आप लोग बीटेक कर सकते हैं। उसमें सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, AIML है, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेट्रॉनिक्स, ऐसे 9 बीटेक कोर्सेज है। उसके बाद में हमारे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी कोर्सेज है, उसमें टोटल 5 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है। 5 पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में हमारे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसके बाद में पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे हमारे पास PG के कोर्सेज है। देन हमारे यहाँ पे डिप्लोमा के भी 5 कोर्सेज है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये हमारे यहाँ पे डिप्लोमा के कोर्सेज है। हमारे यहाँ पे एक PhD रिकॉग्नाइज PhD रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसमें हमारे यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स में हमारे यहाँ पे PhD होता है। उसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें स्टूडेंट जो है वहाँ पे PhD कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, देन जिम्नेशियम है। इसके लिए फिर उसके बाद में जो बच्चे हैं उसके रिगार्डिंग प्लेसमेंट, अगर हम लोग प्लेसमेंट पे बारे में हम लोग ये बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स का अराउंड 90% वहाँ पे हमारे यहाँ पे प्लेसमेंट है, और हायर पैकेजेस में स्टूडेंट्स वहाँ पे प्लेस होते हैं। डिफरेंट साइड एक कंपनीज के साथ हम लोगों ने MOU किया है। और एक हमारे पास मॉडल जो है, उसमें हम लोग ट्विनिंग प्रोग्रामिंग का मॉडल है। तो ट्विनिंग प्रोग्राम में क्या है, हम लोगों ने 45+ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ में यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारे यहाँ पे जो बच्चे एडमिशन लेंगे अंडर ट्विनिंग प्रोग्राम, तो ये ट्विनिंग प्रोग्राम जो है AICTE अप्रूव्ड ट्विनिंग प्रोग्राम है। जो बच्चे हमारे यहाँ पे ट्विनिंग प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, उनके लिए 2 मॉडल्स है, एक है 2+2 मॉडल और दूसरा है 2+3 मॉडल। तो 2+2 मॉडल में क्या है, बच्चे 2 साल यहाँ पे RIT में पढ़ेंगे और 2 साल वो वहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उनको वहाँ पे बीटेक डिग्री मिलेगा। उसके बाद में और एक मॉडल है हमारे पास 2+3 मॉडल, जिसमें 2 साल RIT में रहेंगे और 3 साल और जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने जहाँ पे टाई अप किया है वहाँ पे उनके 3 साल रहेंगे। तो उसमें उनको इंटीग्रेटेड MS प्रोग्राम का वहाँ पे सर्टिफिकेशन डिग्री वहाँ पे मिलेगा। ओके, इसका कोई अलग चार्जेस होता है क्या ट्विनिंग प्रोग्राम का, या ऑल इंक्लूडेड में होता है? ओके, अभी ट्विनिंग प्रोग्राम के लिए अलग चार्जेस नहीं है। उसमें एक जो कॉलेज का अभी 2+2 वहाँ पे मैंने आपको बताया मॉडल रहता है। तो 2 साल जो RIT में रहेंगे, तो RIT का जो हमारे पे 1,65,000, तो वहाँ पे उनको 2 साल के लिए वो भरना पड़ेगा, पर ईयर 1,65,000 और दूसरे ईयर का 1,65,000। और नेक्स्ट ईयर जो 2 साल रहेंगे, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज रहेंगे, वहाँ पे उन यूनिवर्सिटी की जितनी फीस है उसके हिसाब से आप लोगों को वहाँ पे फीस भरना पड़ेगा। ओके, तो मतलब बहुत सारी 45 कंट्रीज बोले Yes. तो बहुत सारी है। Yes. और अच्छा लर्निंग भी मिलेगा बच्चों को। यस, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। We are in TV9 Marathi Educational Expo. So Anup sir is guided to you what are the university do and what are the courses and placement and others regarding helping you. So टॉकिंग अबाउट गणपत यूनिवर्सिटी, देखिए गणपत यूनिवर्सिटी जो स्टार्ट हुआ था 30 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ये यूनिवर्सिटी बेसिकली गर्ल्स के लिए स्टार्ट हुआ था। Okay. ये गणपत यूनिवर्सिटी महसाणा गुजरात में है। हाँ. और ये 400 एकड़ का कैंपस है। इट्स अ रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये 30 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है और रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें डिफरेंट कोर्सेज है महसाणा गुजरात में, राइट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड टू 198 कोर्सेज टिल PhD तक के सारे कोर्सेज है। अभी इसी साल से हम लोग ने गोवा में कैंपस स्टार्ट किया है। इट्स अ ट्रांजेक्ट कैंपस। हम लोग ने UGC की तरफ से सारे अप्रूवल्स हम लोगों को मिले हैं गोवा कैंपस के लिए। वी हैव द कोर्सेज लाइक बीटेक CSC, AIML एंड साइबर सिक्योरिटीज का कोर्स है। देन वी हैव BBA, MBA कोर्स एंड मरीन के लिए काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ जानी जाती है, और मरीन हमारा महसाणा गुजरात में भी है और गोवा कैंपस में भी है। इसमें हम बीटेक मरीन भी करवाते हैं, DG शिपिंग का भी कोर्सेज है एंड अदर डिप्लोमा कोर्सेज भी है मरीन में हम लोगों के।
तो इस टाइप से गणपति यूनिवर्सिटी में डिफरेंट कोर्सेज है, जिसमें आप अगर से इंटरेस्टेड होगे कि और कौन से कोर्सेज है और कैसे हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ। ओके, सो प्लेसमेंट रिगार्डिंग कुछ लोगों का डाउट रहता है देखिए, कि प्लेसमेंट्स हम लोगों के यहाँ ये रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी होने के कारण फर्स्ट डे जैसे ही गणपति यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते हैं, हम लोग 2 कैटेगरी में स्टूडेंट्स को बाइफरकेट कर लेते हैं। पहली कैटेगरी में जैसे स्टूडेंट्स को जिसको जॉब होना है, उनको प्लेसमेंट्स के लिए हम लोग तैयार करते हैं। दूसरा, जिनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार करना है, जो खुद का अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको फर्स्ट डे से हम उस टाइप से तैयार करना चालू करते हैं। अब मान लीजिए जैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के लिए आते हो या शुरुआत करना चाहते हो, तो आपके पास कोई आइडिया होगा एक बिजनेस स्टार्टअप करने का, तो मेरी फैकल्टी उनको हेल्प करती है फ्रॉम द फर्स्ट डे से ऑनवर्ड से। और विद इन जब आप 3rd ईयर में होते, इन फ्रंट ऑफ HODs, डीन्स, वाइस चांसलर्स के सामने हम लोग वो स्टूडेंट वो प्रेजेंटेशन देता है, और अगर से वो प्रेजेंटेशन पसंद आता है सभी को, सारी कम्युनिटी मेंबर्स को, तो हम लोग उनको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं टू स्टार्ट द प्रोजेक्ट। उसी तरह से 3rd ईयर से ही हम लोगों के यहाँ पे 1st ईयर से ही जैसे कैंपस प्लेसमेंट के लिए हम लोग स्टूडेंट्स को भी उसी तरह से 2nd पार्ट में हम लोग प्लेसमेंट के लिए भी वैसे तैयार करते हैं, ओके इंटरनेशनल एंड नेशनल कंपनीज के लिए। ओके, ये अच्छा है कि मतलब कॉलेज में रहते रहते ही सब कुछ कर सके। सो दैट्स व्हाई मेरा जो प्लेसमेंट अगर से आप बोलोगे रिकॉर्ड्स, दैट इज 100%। ओके, इट्स अ बिग, मतलब 100 में से 100 लोग। यस, देखिए ऐसा नहीं होता है, 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। आइदर दे गो फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम, आइदर दे गो फॉर द प्लेसमेंट, आइदर दे गो फॉर द फर्दर स्टडीज। जैसे बीटेक वाले स्टूडेंट एमटेक के लिए जाते हैं या कोई दूसरे प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं। तो मोस्टली जो ग्रेजुएशन यानी आप बोलोगे यूजी प्रोग्राम के स्टूडेंट, अगर से मैं रेशियो बताऊं तो 60 to 70% तो स्टूडेंट्स अपने पीजी प्रोग्राम के लिए जाते हैं, और काफी कम स्टूडेंट प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आ जाते हैं। ऐसा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, नाइस।